हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर राजेश कांत। आज आप मैं के साथ मैं डिस्कस करूंगा केमिकल काइनेटिक्स में काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। चलिए जी, काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शंस में हम बात करेंगे पैरेलल रिएक्शंस होती क्या है। जब एक से ज़्यादा हमारे पास रिएक्टेंट जो है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा हो, जैसे कि अगर कोई मेरे पास रिएक्टेंट है ए और वो साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम बी और सी दोनों में कन्वर्ट हो सकता है, बी और सी दोनों में कन्वर्ट हो सकता है। लेट इसको हम फर्स्ट स्टेप रिएक्शन बोलते हैं, इसको सेकंड रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी रिएक्शंस में जिसमें कि साइड वाइज एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन या साइड रिएक्शंस भी बोलते हैं। चलिए बेटा, हमारे केस में जो हमने स्टडी करना है वो है कि जब दोनों ही ये जो रिएक्शंस हैं दे आर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, let k1 be the specific rate constant for reaction 1 and let k2 be the specific rate constant for reaction 2. Let A be the initial concentration of reactants and let after time t, this is the initial concentration. Initial concentration means just at the start of the reaction when no time has just passed. After time t, let after time t, when time t has passed, let after time t, x moles of A have been converted into B and C. B or C meaning has been converted either to B or to C. Then after time t, then the concentration of A will be A minus x, and let out of x, y moles have been converted into B and z moles have been converted into C, because both reaction 1 and 2 are first order reactions. Therefore the rate of the reaction, rate of appearance of b, appearance of b means rate of formation of y is the concentration of b at time t. Rate of formation of b at time t means change in the concentration of y will be equal to क्या, specific rate constant k1 into concentration at time t, और concentration क्या है इसकी, concentration at time t। और इसी तरह से जो आपकी ये concentration है दूसरे की, that this will be k1 into क्या y, और जो आपका ये है सॉरी, दिस इज फॉर द रिएक्टेंट्स, इसमें हमने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की लेनी है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है कि आपने उस समय उसके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है। और बी के लिए जो बी बन रहा है, जो कि बी का मोड बना है वाई एट टाइम टी, उसके लिए जो रिएक्टेंट्स हैं वो ए माइनस एक्स है इस समय, देयरफॉर के वन इंटू ए माइनस एक्स। सिमिलरली द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड with time t will be equal to k2 specific rate constant this section into a minus x। एक तो ये बात होगी। दूसरा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए मींस ए कितना हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है किस रेट से, एट टाइम टी इसका ए माइनस एक्स कन्वर्ट हो गए हैं। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, मैं भी लिखता हूं थोड़ा थोड़ा साथ में, रेट ऑफ disappearance, disappearance of A can be written in chemical kinetics as, minus means disappearance और change in concentration of A at time t, A की concentration time t पे क्या है x, so this will be minus dx by dt। And the rate of formation of B and C, rate of formation of B and C, formation of B and C, बी एंड सी कितने बन रहे हैं, जितने ए डिसअपियर हो रहा है। ये अगर माइनस में है तो वो क्या आएगा, प्लस में आएगा, तो उसके रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, प्लस डी एक्स अपॉन डी टी। ये दिस इज द टोटल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी एंड सी। एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अभी मैंने आपको बताया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या है हमारे पास, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, वो जो मैंने अभी ऊपर लिखा, change in the concentration of y is the concentration of b at time t na, so this will be the rate of formation of b, this will be dy by dt, this is equal to k1 into a minus x। And similarly rate of formation of C, rate of formation of C. This is again, this will be change in the concentration of Z, because Z is the concentration of C. So this is the rate of appearance of C or rate of formation of C. So dz upon dt, and this we have already discussed, this is equal to k2 into a minus x। चलिए, from
these two equations, from this and from these two equation, इन तीनों को अगर आप कंपेयर करें, this is total rate of formation of B and C and this is the individual rate of formation of B and C. So the individual को अगर ऐड करें तो टोटल बन जाना चाहिए. This implies dx upon dt पॉजिटिव में this will be equal to dy upon dt plus dz upon dt. और कहें तो इनकी वैल्यूज अगर भर लें यहाँ पे, this will be equal to k1 into a minus x plus k2 into a minus x. ठीक है जी. और अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं dx upon dt will be equal to, ये जो चीज को मैं बीच में छोड़ रहा हूँ, बीच में यहाँ से देखिए a minus x दोनों में कॉमन है, तो मैं कब कॉमन निकालूंगा तो k1 plus k2 into a minus x. ये क्या आ गया मेरे पास, टोटल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी एंड सी. और इसमें बेटा देख रहे हैं कि दो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं, k1 एंड k2. k1 और k2 क्या है, this is the specific rate constant for the formation of B and this is the specific rate constant for the formation of C. This k1 plus k2 means the total rate of formation of B and C, या कि ये total rate on which the disappearance of जो है A depends. So we can write, let us suppose या let us say let k1 plus k2, क्योंकि k1 भी constant है और k2 भी constant है, let this constant be given the name k. और this k1 plus k2 is equal to k. और k क्या है, k आपको सिंपली दे रहा है कि आपका टोटल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट. जैसे एक k1 था k2 था, तो k भी एक मेजर दे रहा है आपको कि कितना कन्वर्ट हो रहा है x a जो है b और c में. तो इसका मतलब k1 और k2 की वैल्यू अगर टोटल की जाए तो वो हमें k देता है. और k की वैल्यू हम पता कर सकते हैं बाय नोटिसिंग द कंसंट्रेशन चेंजेस इन a विद टाइम. के तो पता कर सकते हैं, लेकिन k1 और k2 को इंडिविजुअली पता करना हो तब अभी हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं बनी है. अभी हम बात कर रहे हैं k1 प्लस k2 दोनों को इकट्ठा निकाला जा सकता है. और अगर मैं इनको अलग अलग निकालना चाहूँ तो उसकी क्या वैल्यू है, कैसे पता करेंगे, उसी पे काम करना अभी हमने. तो दिस विल बी इक्वल टू, पहले तो हम लिखते हैं dx अपॉन dt, दिस इज इक्वल टू k1 प्लस k2 की जगह मैंने k यूज कर लिया, इनटू इनटू क्या हो गया, इनटू a माइनस एक्स. क्या किया मैंने, इसको यहाँ पे यूज कर लिया है. चलेंगे आगे, यहाँ पे आगे चलेंगे. दिस इज द स्मॉल चेंज इन एक्स. एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी. और डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, कि स्मॉल चेंज इन एक्स क्या हो रही है विद टाइम टी, एट टाइम टी. दिस इज इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज, दिस इज इन्फिनिटेसिमल रेट ऑफ द रिएक्शन. और अगर हम टोटल रेट निकालना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर चेंज निकालना चाहते हैं एक्स में, देन वी विल हैव टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन. और इंटीग्रेट करने के लिए जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट करना पड़ेगा. सो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, एक्स के साथ ले आइए, ए माइनस एक्स नीचे चला गया, के इंटू डी टी. नो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. और वहां कहा, जब टी जीरो था एक्स जीरो था, एक लिमिट ये है. और दूसरी कंडीशन क्या है, कि जब टी हो गया, जब टी आफ्टर पर्टिकुलर टाइम टी, एक स्पेसिफिक टाइम टी के बाद जो आपका एक्स था, जो आपका ए माइनस एक्स जीरो था, उस समय जो आपका एक्स था वो कहाँ तक पहुंच गया, एक्स. एक्स क्या है, कि कितना कन्वर्ट हो गया है रिएक्टेंट ए आगे प्रोडक्ट्स बी में. जब टाइम टी जीरो था तो एक्स भी जीरो था. मीन्स उस समय आप कहें तो a माइनस एक्स जो था वो a के बराबर था, उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन थी. और जैसे ही टाइम आगे बढ़े तो आफ्टर टाइम t कुछ अमाउंट a का कन्वर्ट हो गया. कितना कन्वर्ट हो गया, x कन्वर्ट हो गया, इसलिए ये x आ गया. नो, मैं इस ऊपर वाली रिएक्शन को इंटीग्रेट करूंगा, dx अपॉन a माइनस एक्स फ्रॉम द लिमिट x0 टू x0 टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू k इंटू dt की भी इंटीग्रेशन करेंगे. और लिमिट क्या है, जीरो, टाइम t जीरो से लेके टी तक जाना है. चलिए इसकी इंटीग्रेशन करें अगर, तो साइड पे मैं कर देता हूँ, 1 अपान ए माइनस एक्स की इंटीग्रेशन करें इंटू डी एक्स, तो बेटा ये आता है क्या, ये हमारे पास आता है log ऑफ 1 अपान ए माइनस एक्स. कैसे, मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है, अगर आप देखना चाहें थोड़ा सा मैं बता दूंगा. 1 अपान ए माइनस एक्स की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो 1 जो भी फंक्शन होता है, ऐसे कर लीजिए इसको, और भी सिंपलीफाइड फॉर्म में आपको बताता हूँ मैं। इसको अगर आपने पुट करना है तो लेट इस केस के लिए, जो इस क्वेश्चन से कोई ज़्यादा उसका नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ मैथमेटिकली ये कैसे आया। लेट a माइनस एक्स बी इक्वल टू यू, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ए कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन जीरो हो गई, एक्स एक वेरिएबल है, तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, तो डी यू इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। यू भी एक वेरिएबल है, एक्स भी एक वेरिएबल है, और मैंने अब इसको यूज कर लिया। डी यू की जगह यूज करूंगा एक्स की जगह मैं यूज करूंगा डी यू, और ए माइनस एक्स की जगह यूज करूंगा क्या, यू। मैं कि इस टर्म को मैं यू की फॉर्म में लाके सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये तो मैंने आपको पहले इसका फार्मूला बता दिया, ऐसा होता है। अब मैं बता रहा हूँ आया कैसे है, और उसको बताने की कोशिश में 1/a-x मीन्स 1/u, और dx की जगह क्या लिखेंगे, माइनस डी यू। ठीक है जी, dx इसके बराबर है, तो जो मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ये देखिएगा हमारा ये है कि dx अगर ये है तो ये माइनस डी यू के बराबर है। दिस शुड बी इक्वल टू 1 माइनस बाहर ले जाइए, दिस इज 1/u इंटू डी यू, और 1/u की जो इंटीग्रेशन होती है log ऑफ u, और माइनस है, माइनस को जो आप ले जाएंगे इसके साथ कंपनसेट कर, इसके ऊपर करेंगे माइनस, ये आ जाएगा log ऑफ u रेस्ट पावर -1, और दिस इज इक्वल टू log ऑफ 1/u, और u क्या था आपका शुरू में जो हमने भरा, दिस इज log ऑफ a1/a-x। ये टोटल इसकी जो इंटीग्रेशन आती है, मैंने समझाने की कोशिश कर दी यहाँ पे, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिट्स है हमारी 0 to x, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, log ऑफ 1/a-x विद इन द लिमिट 0 to x, और यहाँ पे क्या है, k बाहर आ गया, dt की इंटीग्रेशन t हो गई विद इन लिमिट 0 to t। जब ऊपर बढ़े हम यहाँ पे, लिमिट्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/a-x, यहाँ पे a माइनस एक्स, क्योंकि x की जगह x ही भरा, पहले मैंने वेरिएबल x है, x की जगह ही लिमिट जानी है। एक टर्म ये आ गई, माइनस लोअर लिमिट log ऑफ 1/a-0, एक लिमिट ये आ गई मेरे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड की होगी, और राइट हैंड साइड पे k, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, तो kt ही रहा। यहाँ पे फिर देखेंगे, ये आ गया मेरे पास log ऑफ 1/a-x, और माइनस log ऑफ a-0 इज a, तो 1/a, दिस इज इक्वल टू के टी। ये मेरे पास आ गया log ऑफ 1/a-x, और इसको माइनस को मैंने अगर कंपनसेट कर, या ऐसे करिए, या ऐसे करिए क्या, इसको भी मैं ऐसे करता हूँ आपके साथ, दिस इज द फार्मूला, हम फार्मूला लगाते हैं, दिस इज log ऑफ m माइनस log ऑफ n। log ऑफ, आपको फार्मूला याद होगा, नहीं तो देख लीजिए, log ऑफ m फर्स्ट टर्म माइनस log ऑफ सेकंड टर्म, दिस इज इक्वल टू log ऑफ फर्स्ट टर्म बाई सेकंड टर्म। यहाँ पे m जो है वो क्या है, log ऑफ m है 1/a-x, ये डिवाइड करना है, जो इसका आगे वाला log के साथ टर्म है, डिवाइड करेंगे 1/a से, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा a/1 से, दिस इज इक्वल टू के टी। तो मेरे पास आ गया log ऑफ a/a-x इज इक्वल टू के टी। के क्या है बेटा, के क्या है, वही के जो हमने शुरू से शुरू किया हुआ है, ये कैपिटल के आता चलता आ रहा है ऊपर से, फिर के इज इक्वल टू k1 प्लस k2। मैं जैसे ऊपर भी बात कर रहा था, के तक तो हम पहुंच गए, लेकिन इंडिविजुअली अगर k1 और k2 को पता करना हो, तो अभी हमारे पास वो पॉसिबिलिटी बनानी है। अभी हम अगर ये कोई और रिलेशन k1 और k2 की टर्म्स में पता कर लें, तो हमारे पास इंडिविजुअली k1 और k2 को पता किया जा सकता है। कैसे, देखिए मैं फिर से बता दूं, जो k की वैल्यू है, टोटल k की वैल्यू, दिस कैन बी obtained by noticing the concentration changes in a विद टाइम, क्योंकि टोटल के में कितनी चेंज हो रही है वो आइडिया देता है के का। बट सेपरेट जो इवेल्युएशन है के1 और के2 की, वो अभी तक हमें पता नहीं चलती, उसके लिए एक और रिलेशनशिप चाहिए, और वो रिलेशनशिप हम कहाँ से निकालेंगे, देखिएगा। अभी हमने जो जहां जो भी ऊपर से जो अभी तक सीखा, दैट इज अमाउंट ऑफ बी एट एनी स्टेज, अमाउंट ऑफ बी एट एनी स्टेज डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ C एट एनी स्टेज। इनकी अगर हम रेशियो देखें,
अमाउंट कैसे दिया जाता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बी से, और अमाउंट ऑफ सी एट एनी स्टेज कैसे दिया जाता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी से। तो दिस विल बी डी वाई अपॉन डी टी एंड दिस विल बी डी जेड अपॉन डी टी। नहीं तो आप वो भी लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। अब और देखिएगा आगे, डी वाई बाई डी टी हमारे पास किसके बराबर होता है, मैं फिर से ये लिखता हूं, अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, या अमाउंट ऑफ बी सिंपली लिखेंगे जैसे मैंने ऊपर लिखा, अमाउंट ऑफ बी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एट एनी स्टेज डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सी एट एनी स्टेज, दिस विल बी इक्वल टू, क्योंकि इनकी रेशियो इनके रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ जो अपीयरेंस के बराबर है उनकी रेशियो के बराबर है, और डी वाई बाई डी टी हमने ऊपर ही लिखा, दिस इज के वन इंटू ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई के टू इंटू ए माइनस एक्स, क्योंकि डी जेड अपॉन डी टी के टू इसके बराबर है, ए माइनस एक्स कट गया, दिस इज के वन अपॉन के टू। अब फिर से देखिएगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेट दिस कांस्टेंट इज गिवन द नेम के डैश। इसका मतलब अब मेरे पास के वन और के टू की कोरिलेशन आ गई, वो क्या है कि के वन अपॉन के टू इज इक्वल टू के डैश, और के डैश भी अपने आप में कांस्टेंट है। और इस के डैश की वैल्यू का हम पता कैसे कर सकते हैं, इसको हम पता कर सकते हैं by the at the end of the reaction by noticing the total change in C and B and C। तो टोटल चेंज बी और सी की कंसंट्रेशन में कितनी हुई, उससे हम के डैश का अंदाजा लगा सकते हैं। कहने का मतलब के हम निकाल, के का हमें पता है, के का हमें पता है, के डैश का भी पता है। अगर ये दो कांस्टेंट्स पता है तो के वन और के टू भी निकाले जा सकते हैं। कैसे, अगर के डैश पता है तो दिस इंप्लाइज के वन इज इक्वल टू के टू इंटू के डैश। इन इक्वेशंस को नंबर दे दीजिए, ऊपर से देते आइए। चलिए मैं यहाँ से देता हूँ के वन, ये इक्वेशन वन थी, ये इक्वेशन टू थी। वन और टू इक्वेशन में हमें इनके लेफ्ट हैंड साइड पता है, और राइट हैंड साइड में जो अननोन दो क्वांटिटीज हैं उनको इनकी टर्म्स में पता करने की कोशिश करेंगे। लेट दिस बी इक्वेशन थ्री, यूज थ्री इन वन। थ्री में जो आपकी वैल्यू आई है के वन की, वो उसमें डाल दीजिए वन में। दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू, क्या है ये, के वन प्लस के टू है ना, तो के वन की जगह हम लिखेंगे के टू के डैश प्लस के टू, और के टू कॉमन निकाल लीजिए, वन प्लस के डैश या के डैश प्लस वन। कहने का मतलब के आपको पता है, के डैश पता है, तो के टू निकल जाएगा। और फोर्थ इक्वेशन में अगर आपको के टू निकल गया, दिस इंप्लाइज, मैं इसको ऐसे नीचे लिखता हूँ, और दिस इंप्लाइज के टू इज इक्वल टू के अपॉन वन प्लस के डैश। अगर ये निकल गया मेरे पास, लेट दिस बी इक्वेशन फोर। फोर से जब ये निकल गया तो यूजिंग फोर यूजिंग फोर इन कहाँ पे, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए जहाँ पे के वन की वैल्यू है, इन वन में डाल दीजिए दोबारा से, इन वन वी विल गेट के इज इक्वल टू, के किसके बराबर है, के वन प्लस के टू, के वन प्लस के टू है ना, तो वहां पे के वन की वैल्यू अब रहने दीजिए, और के टू की वैल्यू हमने निकाल दी ऐसे ही, या ऐसे भी निकाल सकते हैं बेटा इसको। कैसे, ये देखिएगा, पहले आपने के टू की वैल्यू निकाल दी, और इसी तरह से अगर के वन की वैल्यू निकालना चाहें तो जैसे थर्ड में के वन को के टू की फॉर्म में लिखा था, हम इसको के टू को के वन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है क्योंकि के वन और के टू की वैल्यू हमें पता है, के वन प्लस के टू, के वन प्लस के टू किसके बराबर है, के के बराबर है। और अगर के टू का हमें वैल्यू पता चल गई है तो के वन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, के वन प्लस के टू की वैल्यू यहीं से यूज कर लीजिए, वन प्लस के डैश इज इक्वल टू के, और के वन इज इक्वल टू के माइनस, ये टर्म जो ये पूरी टर्म है उतर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस के अपॉन वन प्लस के डैश। तो क्या आप देखिए, इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो इसको मल्टीप्लाई करिए, के माइनस के इंटू के डैश माइनस के अपॉन वन प्लस के डैश, तो के कट गया, तो के वन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ के डैश एंड के माइनस माइनस के इंटू के डैश अपॉन वन प्लस के डैश। कहने का मतलब इन पूरी कैलकुलेशन से मैथमेटिकली हमने ये बता दिया कि अगर हम चाहें तो किसी भी रिएक्शन को, जो फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन है जिसमें कि ए कन्वर्ट हो रहा है बी एंड सी में,
तो उसमें हम उनके स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट K1 और K2 पता कर सकते हैं। और ये पता करना ही हमारा काम था काइनेटिक्स में। जब के काइनेटिक्स में स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट निकल जाते हैं, तो हम उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे दे सकते हैं। फिर से देख लीजिएगा, मैंने शुरुआत करी एक ऐसी रिएक्शन ए से जो कि पैरेलल चलती है, बी और सी में कन्वर्ट होता है। K1 और K2 इसके स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स हैं कि कन्वर्जन ऑफ A इनटू B एंड C रिस्पेक्टिवली। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B को मैंने कहा dy by dt, क्योंकि मैंने अज्यूम किया कि A जो आफ्टर टाइम t x मोल A के कन्वर्ट हो गए थे, किसमें, B और C में। ए में एक्स में से कुछ गए वाई में, कुछ जेड में, और वाई में जो गए वो बी को रेट ऑफ फॉर्मेशन है, जेड जो गए वो सी में कन्वर्ट हुए हैं। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी एट टाइम टी विल बी डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू के वन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इंटू ए माइनस एक्स। सिमिलरली डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल के टू ए माइन के टू इंटू ए माइनस एक्स। फिर मैंने बताया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए अगर माइनस डी एक्स अपॉन डी टी है, तो टोटल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू बट अपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो इसलिए वो प्लस में आ गया। और फिर मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअली बी और सी को ऐसे लिखा जा सकता है, और इनको टोटल फॉर्म में लिखें अगर, तो फिर टोटल जो है डी एक्स बाई डी टी शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द टू इंडिविजुअल टर्म्स। ठीक है जी। और इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या कि ये टोटल रेट ऑफ फॉर्मेशन इनका आ गया। और यहाँ से हमने देखा कि जो हमारे पास K1 और K2 है वो इन टर्म्स ऑफ K आ रहे हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअली पता करना है तो हमने एक और कंडीशन लगाई कि पहले तो इसको वो इंटीग्रेट करके टोटल यहाँ तक हम पहुंचे कि अगर हमने ये K पता किया जा सकता है, लेकिन K1 और K2 को अगर इंडिविजुअली पता करना है तो हमने एक और इनके रेशियो देखा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी टू सी। और वो उसका आइडिया भी हम निकाल सकते हैं कि एंड में बी कितना बना, सी कितना बना, उन दोनों को अगर डिवाइड करें तो वो जितने बने वो डिपेंड करते थे उनके रेट ऑफ फॉर्मेशन पे। और रेट ऑफ फॉर्मेशन पे जितने बने थे तो मींस उसकी रेशियो एक फिक्स क्वांटिटी है, और उस क्वांटिटी को मैंने के डैश कहा, और वो भी रिलेटेड है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी एंड सी से, मींस रिलेटेड है K1 और K2 से। K1 और K2 की दो टर्म्स आ गई, दो इक्वेशंस आ गई, एक के की फॉर्म में, एक के डैश की फॉर्म में, जो कि के और के डैश दोनों ही हमें पता है। और वहां से मैंने आपको बताया कि K1 और K2 कैसे निकाला जा सकता था। दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स फॉर द पैरेलल रिएक्शंस। ठीक है जी। चलिए यहाँ तक रखते हैं।